Okay. Last day means in the previous class, that is on yesterday, we discussed about electric field lines, I guess, and we started electric field lines. We talked about what is the electric field line, and we started properties. We started a topic that was properties of electric field lines, and in that category, we only discussed one property last in the last class. And I remind you that the property was electric field lines are a continuous curve without any break. Means it should be continuous, it cannot have any break. Okay. Now we will discuss some more properties related to those electric field lines. And what are now the another property for electric field lines? What are those properties? So I'm going to start with the second property. You can number it according to you. Means I'm going to write the next property, which is if you have any electric field lines, whether it be a curve or whether it be a straight line, doesn't matter. It should be a continuous. तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है आपके पास, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो बेटा for that electric field line, if you take a tangent to any point on that field line, if you draw a tangent at any point on the electric field lines, so that tangent or the direction of tangent gives the direction of force at that point. Means the tangent drawn to any point on the electric field line will give you the direction of force at that point. See, if I have a curve like this, so obviously the direction of tangent, if you have a curve like this, obviously the direction of tangent will change at every point. If you have any electric field line and if it is a curve, so obviously the tangent or the direction of tangent at every point will be different. It will change, you know, if you go from this point to that point or any point, direction of this tangent is changing, means the force at every point will have different direction, and that can be graphically understood by drawing the tangent. अच्छा, अगर मान लो यही इलेक्ट्रिक, if it would have been a straight line, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे होती, तो अगर मैं इस पे टेंजेंट ड्रॉ करता किसी भी पॉइंट पे, लेट से यहाँ पे ड्रॉ करो या यहाँ पे करो या यहाँ पे करो, किसी भी पॉइंट पे, तो सर टेंजेंट की डायरेक्शन सेम होगी या नहीं होगी इन दिस केस, इफ यू हैव दीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस व्हिच इज अ स्ट्रेट लाइन? Yes, sir. है ना? दिस मींस दैट if the electric field lines is represented by a straight field lines like this, it means the direction of sorry, the direction of force at every point will be same. But if it is a curve, the direction of force at every point will change. So in the case of these kind of curves, to check the direction of force at any point, we draw the tangent to that point. ठीक है? तो इसका क्या मतलब हो गया सर? इसका मतलब ये हो गया कि tangent drawn to any point on electric field lines gives the direction of force at that point. क्या बताता है ये? वहां पर फोर्स की डायरेक्शन बताता है. तो डजेंट मैटर जैसा भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो, आप उस किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर लो, तो आपको फोर्स की डायरेक्शन पता चल जाएगी. समझ गए हो? नाउ द नेक्स्ट पॉइंट. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप समझो. नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये कहता है कि नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस can intersect each other. ठीक है, कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर सकती. क्या मतलब हुआ सर? मतलब ये है कि इफ यू हैव दीज टू फील्ड लाइंस, एक ये फील्ड लाइन है, मान लो दिस इज वन ऑफ द फील्ड लाइन एंड दिस इज द अनदर फील्ड लाइन. ठीक है, तो दीज टू फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट. मींस फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं हो सकती. क्यों नहीं हो सकती सर? आपको पूछा जा सकता है, why two field lines cannot intersect each other? Why two field lines cannot intersect each other? तो बात समझो बेटा. at the point of intersection how many field lines I am having? इस पॉइंट पे कितने फील्ड लाइन? दो.
इसका मतलब बेटा I will draw the two tangent because I have two field lines, so I will have to draw the two tangent to that point. ये एक tangent और ये एक tangent. I'll have to draw the two tangents. ठीक है, दो tangent हमें draw करना पड़ेगा. We'll have to draw the two tangents. अच्छा बेटा, दो tangent draw किया मैंने, इसका मतलब है at the same point, एक ही point पर there are two direction of force. क्या ये पॉसिबल है बेटा? मुझे एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम पॉइंट पर एक ही चार्ज पे दो डायरेक्शन में फोर्स लगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है. इसीलिए हम कभी भी दो फील्ड लाइंस को इंटरसेक्ट नहीं करा सकते. ठीक है, इसका रीजन क्या होगा कि अगर हमने किसी पॉइंट पे दो फील्ड लाइंस या दो से ज्यादा फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट करा दी, if two or more than two field lines intersect at a point, it will mean that at the same point there are more than one direction of force on the same charge, which is not possible. ठीक है, किसी भी एक पॉइंट पे चार्ज पे या तो फोर्स लगेगा रिपल्शन का या अट्रैक्शन का. एक ही पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स नहीं लग सकता. ठीक है, बात समझ में आई? यस क्लियर है? इसका रीजन क्या लिखेंगे आप? एज एट सेम पॉइंट, at same point charge cannot experience force in more than one direction. चार्ज पे एक से ज्यादा फोर्स की डायरेक्शन नहीं हो सकती किसी भी एक पॉइंट पर. ये इसका रीजन है. दैट इज व्हाई टू फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट. नोट कर लो इसको, तो मैं आगे की प्रॉपर्टीज पे डिस्कशन करूं. डन सर. Okay, moving on to the next property. Sir, next property को समझते हैं. Fourth property. Sir, if you have field lines like this, यहाँ पर देखो field lines ऐसे मैंने बनाया, ये field lines मैं बना रहा हूँ. ठीक है, ये field lines बना रहा हूँ, है ना? मैं दो region consider कर रहा हूँ. I am taking this region, I am considering this region, and I am considering this region. Let's say this region is P and this region is Q. Can you tell me how many field lines are passing through this region P? How many field lines are here at P? 4. 4. And how many field lines are at Q? 4. 4. Undoubtedly. At P and as well as Q, the number of field lines are same. But tell me, the separation between the field lines at P and Q are same or different? Different. Different, है ना? तो जितना electric field lines will be separated, more is the separation of the field lines at a point, less will be the electric field at that point. And less is the separation between the field lines, more will be the electric field at that point. क्या मतलब हुआ सर? Electric field lines depends on strength of electric field lines can be understood by the separation between the field lines at a point. Less is the separation, more will be the strength. More is the separation, less will be the strength of electric field. इस बात को ऐसे भी हम समझते हैं. देखो बेटा, मैं एक बार और आपसे पूछ लूं कि अगर मैं इन दोनों को एक एक रीजन मानता हूं, तो just by seeing these two region P and Q, can you tell me which of the region has more area? Q. At Q, obviously Q has more area. तो देखो नंबर तो दोनों में सेम है, ठीक है, नंबर दोनों में सेम है, बट एरिया दोनों की डिफरेंट है. तो यहां पर हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पहले तो ये टर्म समझ लो. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये होता क्या है? तो दिस टर्म इज नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस अपॉन व्हाट? अपॉन एरिया. नंबर ऑफ फील्ड लाइंस अपॉन एरिया. ठीक है, तो अगर आप एरिया इंक्रीज कर दोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि नंबर डेंसिटी विल डिक्रीज, और अगर एरिया कम कर दोगे तो नंबर डेंसिटी विल इंक्रीज. ऑल्दो मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर और यहां पर नंबर इज सेम, बट क्यू पे एरिया ज्यादा है, तो इसका मतलब है नंबर डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस एट क्यू
is less than the number density of field lines at P. कह सकता हूं, मतलब मैं ये Yes, कह sir. सकता हूं कि number density of field lines at P is greater than number density of field lines at Q. तो इसका क्या मतलब हुआ सर? दैट इज देयरफॉर हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि भाई जहां पर फील्ड लाइंस की डेंसिटी जितनी ज्यादा, more is the field lines density, more will be the strength of the electric field. Means I'll claim that electric field density at P is greater than electric field density at Q. ये हम कहेंगे. इसका मतलब है कि after summarizing all this, I can simply write the property as more is the number density of electric field lines more will be a strength of electric field at that point. I hope मेरा point समझ गए आप लोग. This is the property कि more is the number field lines density, more will be the strength of electric field at that point, and less is the density, less will be the strength of electric field at that point. Note करो. हो गया बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. जैसे आपको 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाए, ऑब्जेक्टिव, जस्ट फॉर 1 मार्क, अगर आपसे ऐसे पूछे कि सर इफ द क्वेश्चन इज दिस वे कि आई प्लेस्ड a charge at this point, let this point be A, and a charge at this point, let that point be B. At these 2 points, I have placed the charge. The value of charge is Q and the mass is M. The value of charge is Q and the mass is M. If I ask you where the charge will experience more force, what would you say? A. At which point? Of course, A. मैं ये कह सकता हूँ as electric field at A is greater than electric field as B. ठीक है, मींस फोर्स एट ए इज ग्रेटर देन फोर्स एट बी. ठीक है, तो इसका मतलब अगर इसी में एक क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ ले कि एट विच पॉइंट द लीनियर मोमेंटम ऑफ द चार्ज विल बी ग्रेटर, will it be greater at A or will it be greater at B, or the linear momentum at both the points will be same? What can you comment on the linear momentum? Have you heard the linear momentum? Yes, sir. Okay, so can you simply comment on linear momentum? Linear momentum is mass into velocity. A का था. सर जहां पर फोर्स ज्यादा है वहां पर लीनियर मोमेंटम भी ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है ना, बिकॉज मासेस आर सेम, राइट. यहाँ पे फोर्स ज्यादा है तो वेलोसिटी यहाँ पर ज्यादा होगी ना बेटा, नहीं समझ रहे हो? मैं सारी बातें लिख देता हूँ. देखो, एक्सेलरेशन एट ए विल बी ग्रेटर देन एक्सेलरेशन एट बी, वेलोसिटी एट ए विल बी ग्रेटर देन वेलोसिटी एट बी. ठीक है, देयरफॉर मोमेंटम एट ए विल बी ग्रेटर देन मोमेंटम एट बी. डिड यू अंडरस्टैंड? Yes. Yes, sir. नोट करो, जल्दी जल्दी नोट करते रहो.
Done, sir. Okay. Moving on to the next property. Now we are going to draw the field lines for different arrangement of charge. अब ध्यान से देखो बेटा, मैं field lines draw करूंगा for different arrangement of charge. ये मैं पहले भी बता चुका था, ये वाला जो अभी ड्रॉ कर रहा हूं. जल्दी से देख लेते हैं. If you have a positive charge, ठीक है, how will you draw the electric field lines? तो बेटा, if you have a positive charge, obviously that will always be radially outward, है ना, ऐसे होगा. If you have a positive charge, electric field lines will be drawn like this. जल्दी जल्दी से draw कर लेते हैं. These are the field lines. In every direction, this will be directed away from the charge. Means I can simply claim that कि electric field lines originates at charge and terminates at infinity. कहाँ से start हो रहा है? Charge पे. कहाँ जा रहा है? Infinity पे, है ना? ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ field lines originates at charge and terminates at infinity. अच्छा, वैसे ही अगर ये नेगेटिव चार्ज हो जाए, ये भी आप लोगों को पता है कि अगर if the charge is negative, electric field lines ऐसा ही कुछ बनेगा, but that will be directed towards the charge itself, है ना? Direction of electric field lines will be towards the charge. This will be the direction of electric field lines. This will be the direction of electric field line. This will be the direction of electric field line, है ना? इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ये फील्ड लाइंस कहाँ से आ रही है, वेयर फ्रॉम दे आर कमिंग. तो ऑफ कोर्स आई कैन क्लेम दैट दे आर कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी. ठीक है, तो इन दिस केस कैन आई से दैट के फील्ड लाइंस originates at infinity and terminates at charge. यही कह सकता हूँ, terminates at charge. This is how field lines will be drawn for a single positive or a single negative charge. अच्छा, अब मान लो कि अगर if we have one positive charge and another negative charge, let's say if it is one positive and one negative charge, ठीक है, now how will you draw the field lines? तो हमें एक बात पता है सर कि electric field line should always start from positive charge, and if there is a negative charge, the electric field lines should be directed towards the negative charge. So if you have an arrangement of one positive and one negative charge, so in this case electric field lines will be drawn like this. It will start from positive charge, will terminate at negative charge, will start from positive charge, will terminate at negative charge, will start from positive charge and will terminate at negative charge, like this, है ना? Yes, sir. ठीक है, you can draw as many as field lines you want. So I will not draw more field lines. I'll just represent this like this. Means the number of field lines which is coming out from the positive charge is same as the number of field lines which is terminating at negative charge, right? अगर मैं यहाँ से दो फील्ड लाइंस दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे भी कितनी फील्ड लाइंस पहुंची है बेटा? हाउ मेनी फील्ड लाइंस हैव रीच्ड द नेगेटिव चार्ज? तो ऑब्वियसली टू फील्ड लाइंस हैज रीच्ड द नेगेटिव चार्ज. व्हाई? बिकॉज़ द वैल्यू ऑफ दिस पॉजिटिव एंड दिस नेगेटिव इज सेम. मतलब अगर इफ इट इज 1 कूलम, तो इट इज आल्सो 1 कूलम. ठीक है, इफ इट इज 2 कूलम, it is also 2 coulomb. So means that if you have the same value of charges, then the number of field lines going out of positive charge will be same as the number of field lines reaching at the negative charge. Did you understand? अब ये जो मैंने electric field lines draw किया है, ठीक है, the way I have drawn the field lines, I can conclude two things from this electric field lines which I have drawn for this arrangement of one positive and one negative charge. क्या क्या मैं बता सकता हूं यहां से देखो. पहला पॉइंट that I can claim from this, वो ये देखो, आप ध्यान से देखो. If you check the field lines near the charge, so the separation between the field lines is less, right? As you go away from the charge, the separation increases, and again at the near charge, again in the region of charge, again the separation has decreased. Means at the charge, separation of field lines is less, and away from the charge, separation of field lines is more. Is it clear? Yes. Tell me yes or no. Okay, what does it mean? Why it is drawn like this? The reason is that near the charge, electric field strength will be more, and when you go away from the charge, electric field strength will decrease. Why? Because you know that electric field formula is kq by r square. Means E is inversely proportional to r square.
if you go away from the charge, electric field will decrease. More is the distance, less will be the electric field. That is why in closer to this charge, electric field lines distance is less. Why? Just to represent that if I consider a point here A and if I consider the point here B, so just to represent the fact that at A electric field will be greater than that of B. Why? Because when you are closer to the charge, electric field strength will be more, and when you go away from the charge, electric field strength will decrease. Is it clear or not? Tell me yes or no. Yes, Yes. sir. Yes, it is understood by everyone. Okay, very good. Now, the second point that we can understand from this diagram is, if you see the upper part and the lower part, the direction of electric field lines is same. It is starting from positive, it is going towards negative. It is starting from positive, it is going towards negative. In the upper part also and in the lower part also, the direction is same. Tell me yes or no. Yes, Yes. sir. है ना? यहां से हम एक पॉइंट कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डजंट फॉर्म क्लोज्ड लूप्स. And now you will have to understand what do we mean by closed loop. See, if you have a loop means either you go clockwise or you go anti-clockwise. Every loop has a fixed direction. Either you will go on the clockwise direction, starting from here, ending at here, you are going clockwise, or you start from here and you go in the anti-clockwise direction. Either the direction will be either clockwise or anti-clockwise. Such a case is called as a loop. Okay? But if you look on the electric field lines, it is going in this direction here, it is going in this direction. Can you tell me what is this direction? If I'm going like this, is it clockwise or anti-clockwise? Can you tell me? Clockwise. Clockwise. And what about the lower part? Is it clockwise or anti-clockwise? Anti-clockwise. Anti-clockwise. Of course it is anti-clockwise. इसका मतलब in half part it is clockwise and in other half it is anti-clockwise. Means it is not a loop. Because for a loop, either you will have a direction clockwise or you will have a direction of anti-clockwise. You cannot have both the direction in the same loop. Okay? So it means that electric field lines can never form closed loops. Okay? तो मेंशन कर लो इस पॉइंट को. Electric field lines can never form closed loops. Electric field lines can never form closed loops. Mention this point. Electric field lines cannot form closed loops. लिख लिया. Yes, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज लूप नहीं बना सकता. ठीक है, जब भी बनाएगा तो ये इस तरह का लूप बनाएगा विच इज नॉट क्लोज्ड. अच्छा सर, वैसे भी याद रखो इलेक्ट्रिक फील्ड ना कंजर्वेटिव फील्ड होती है. इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड. तो वैसे भी याद रख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड बीइंग अ कंजर्वेटिव फील्ड इट कैन नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप्स. ठीक है. अच्छा, तो सर इसमें मैंने आपको ये बोला कि दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है एंड दैट इज व्हाई यू आर ड्राइंग द फील्ड लाइंस लाइक दिस. अच्छा बेटा, व्हाट विल हैपन इफ आई टेक द पॉजिटिव चार्ज टू बी 2q एंड इफ आई टेक द नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव है, -q. तो अब मुझे बता सकते हो कि क्या दोनों चार्ज की वैल्यू सेम है? No, sir. नो सर. ठीक है, तो क्या नंबर ऑफ फील्ड लाइंस गोइंग फ्रॉम पॉजिटिव and reaching negative, will it be same or different? Different. Different. Obviously it should be different. So what would be the relation? So of course I can claim that the positive charge is twice in magnitude than that of negative charge. Am I right? Positive charge ka magnitude is twice than that of the negative charge. Is it correct? Yes. Means magnitude को compare करो तो positive charge is twice than that of negative charge. तो जो magnitude का ratio होगा that will be the ratio of electric field lines also. क्या मतलब हुआ सर? पता नहीं क्या बोले. Magnitude wise positive charge twice है than that of the negative charge. तो field lines भी कैसे आप draw करोगे? अगर आपका positive charge, if you take, try to understand, if you take two field lines from this positive charge, so the number of field lines reaching at the negative charge will be 1. Did you understand? If I'll take Yes, 4 sir. field lines coming out from the positive charge,
So I will draw only two field lines reaching that negative charge. Why? Because the magnitude of both the charges are not same. तो अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूं, मैं आपको बताता हूं, यहाँ पर अगर मैं आपको ड्रॉ करूं फील्ड लाइंस, मैंने ये दो फील्ड लाइंस यहाँ पर पहुंचाया है. I have shown the two field lines at the negative charge. This means that I'll have to show 4 field lines coming out from the positive charge. Did you understand? मतलब पॉजिटिव चार्ज से कितनी फील्ड लाइंस निकल रही है? 4, है ना, 4. बट नेगेटिव चार्ज पे कितनी फील्ड लाइंस पहुंचेगी? ओनली 2. तो वेयर द रेस्ट 2 फील्ड लाइंस विल गो? इट विल गो टू इंफिनिटी. It will not terminate at the negative charge. It will go to infinity. Is it clear or not? Tell me yes or no. Yes, sir. Yes, sir. Acha, had this been 3q and minus q, then what would have been the case? How you would have drawn the field lines if this would have been 3q and this is minus q? Then If 3 electric field originate, then only if 6 electric field originates, then 3 will reach at the minus q. very good. If 6 originates from here, then 3 will reach there, obviously. Why? Because the ratio of the magnitude of charge is 1:3. Means if it is 1, then it is 3. So the same will be taken for the field lines also. Say, मान लो कि ऐसे ये 1, 2, I am taking few more, तो 4 या 4. ठीक है, तो बहुत ज्यादा फील्ड लाइंस बनानी पड़ेगी, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो यहाँ पर हमने नहीं, 2 ही पहुंचाते हैं ना, थोड़ा कम ही रखते हैं. क्यों बनाओ? ठीक है, 2 पहुंचाया, तो यहाँ से कितना निकालना पड़ेगा? अगर इसमें 2 पहुंच रहा है तो we'll have to take 6 फील्ड लाइंस coming out. देखो, यहाँ से आपको 6 फील्ड लाइंस you will have to take. Rest of the field lines will terminate at infinity, not at the negative charge. Did you understand? यहाँ से कितने निकले? 6, और यहाँ कितने पहुंचे? 2, है ना? क्यों ऐसा हुआ? कुछ गलत तो नहीं कर दिया मैंने? देख लो. No, sir. यहाँ अगर 2 पहुंचे तो यहाँ से कितने निकालने पड़ेंगे? 3. क्यों? अगर यहाँ 1 पहुंचा तो इसका मतलब है यहाँ से कितना निकला? 3. तो यहाँ अगर 2 पहुंचा तो यहाँ से कितना निकलेगा? उसका ट्रिपल. अगर यहाँ 2 फील्ड लाइंस पहुंचा रहे हो तो उसका ट्रिपल फील्ड लाइंस यहाँ से निकल रहा होगा. समझे? Yes, sir. नोट कर लो जल्दी से. Done, Done? sir. Yes, sir. ओके, अगर मैं इसको थोड़ा सा, बिकॉज आप अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे हो, तो एक बार और चांस लेता हूँ. अगर मैं इसको ऐसे कर देता कि दिस पॉजिटिव चार्ज इज q एंड दिस नेगेटिव चार्ज इज -2q, तो क्या होता बेटा? तो आप कैसे सोचते? डबल पहुंचेगा सर -2 पे. हाँ, -2 पे डबल पहुंचेगा. बिल्कुल सही बात है, -2 पे डबल पहुंचेगा. -2 पे डबल पहुंचेगा. ठीक है, मतलब आप ऐसे दिखाओगे, यहाँ से एक फील्ड लाइन निकला, यहाँ से एक फील्ड लाइन निकला, तो ये 2 फील्ड लाइन यहाँ पे पहुंचा. ठीक है, तो यहाँ से कितना दिखाना पड़ेगा? यहाँ पहुंचा 2, बट आना कितना चाहिए? 4, बिकॉज यहाँ से 2 निकाल के आपने यहाँ पहुंचा दिया है. तो यहाँ से जितना निकला उसका डबल यहाँ पहुंचना चाहिए. तो Yes, sir. कहां से ये बाकी 2 फील्ड लाइंस और कहां से आएगी? वेयर फ्रॉम दोस फील्ड लाइंस विल कम? यहां से तो नहीं आ सकती. वेरी गुड, इन्फिनिटी से आएगी. ये ऐसे इन्फिनिटी से आएगी, ऐसे हो जाएगा बस. आई होप आपको समझ में आ गया. तो जस्ट आपको ना, जब भी चार्जेस आर नॉट सेम और द मैग्नीट्यूड और द वैल्यू ऑफ चार्ज सेम नहीं हो, तो हमेशा क्या करो? यू हैव टू गो बाय दिस लॉजिक कि जो चार्ज का रेशियो है वही फील्ड लाइंस के नंबर का भी रेशियो रहेगा. ठीक है, ओके, Yes, मूविंग sir. ऑन. मैं इसको इरेज कर रहा हूं. लेट्स गो टू द नेक्स्ट. अब on the other hand, if you have two like charges, means if you have both the positive charge, अगर आपको दोनों पॉजिटिव चार्ज है, मान लो कि
ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है. Earlier we had one positive and another negative. Now I am having both the positive charge. तो obvious सी बात है कि अब तो ऐसा नहीं हो सकता. It is not possible to take the electric field line from the positive charge and terminate at the another positive charge. ये तो possible नहीं है. तो इस केस में field lines कैसे बनेगी? Obviously it will start from the positive charge and will terminate at the infinity. It will start from positive charge and will terminate at infinity. It will start at positive charge, will terminate at infinity. Will start from positive charge and will terminate at infinity. Did you understand this? Yes, sir. This will be the diagram for both the charges being positive. Done. आगे बढ़ूं. Yes, sir. अच्छा, had this been negative तो क्या होता? If both have been negative charges, then क्या होता? Same होता sir. नहीं. Same होता. हाँ, The मतलब arrow would have अंदर होता. reversed. हाँ, yes sir. हाँ, arrow would have just reversed. बाकी चीजें तो सेम होती है ना. चलो अब कुछ और प्रॉपर्टीज पे आते हैं. ये तो मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ किया. अब मैं कुछ और पहले एक और प्रॉपर्टी पे डिस्कस कर दूं, फिर उसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन समझाऊंगा. सर कंडक्टर जानते हो आप? डू यू नो व्हाट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टर? Yes sir. Which pass electric current. इलेक्ट्रिक करंट, बिल्कुल. तो याद रखो, ऑलवेज रिमेंबर अ फैक्ट कि इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो. ठीक है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती. इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो. ठीक है, तो पहली बात तो हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो. पहला पॉइंट. ये ऐसे ही एडिशनल पॉइंट है. ये अभी तो प्रॉपर्टी पे आना है. इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो. टेल मी द अनदर थिंग कि इफ आई चार्ज अ कंडक्टर, आपने सुना होगा ना कि आई हैव चार्ज्ड द कंडक्टर और अ चार्ज्ड कंडक्टर. तो इफ वी प्रोवाइड चार्जेस टू द कंडक्टर, तो वेयर डज दोस चार्जेस गो? आई मीन वेयर विल यू फाइंड दोस चार्जेस? वेयर दे विल अपीयर? inside the conductor or on the surface of the conductor? Surface. If you surface, because अंदर तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, मींस अंदर कोई चार्ज भी नहीं है. ठीक है, इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो. एंड रिमेंबर, चार्ज गिवन टू द कंडक्टर, चार्ज गिवन टू अ कंडक्टर resides, conductor resides on its surface. जितना भी आप चार्ज प्रोवाइड करोगे, all the charges will reside on the surface. You have to remember this is the property of conductor, right? Okay, so what is the property of electric field lines for the conductor? Try to understand. Because there is no electric field inside the conductor, that means there cannot be electric field lines inside the conductor. Conductor के अंदर electric field lines तो नहीं हो सकती, because conductor के अंदर electric field zero है. As there is no electric field inside the conductor, there will be no electric field lines inside the conductor. इसका मतलब प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी यह है कि electric field lines cannot pass through conductor. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर से पास नहीं हो सकती थ्रू कंडक्टर. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर से पास नहीं हो सकती. कोई पूछ ले क्यों नहीं हो सकता ऐसा, तो आप क्या रिस्पॉन्स करोगे? आप सिंपली ये बोलोगे कि बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट पास थ्रू द कंडक्टर. बट बेटा मुझे एक बात मालूम है कि अगर मैं ये कंडक्टर ले लूं, लेट मी कंसीडर एज अ कंडक्टर, इट एज अ कंडक्टर, तो अंदर तो चार्ज नहीं है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे तो नहीं बन सकती, बिकॉज इट कैन नॉट पास थ्रू द कंडक्टर एज देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर. इज इट क्लियर? नाउ माय नेक्स्ट पॉइंट इज कि मैंने आपसे बोला कि इफ आई चार्ज द कंडक्टर, तो चार्जेस विल बी देयर ऑन द सरफेस. तो सरफेस पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सर. देयर विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस, मींस देयर विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस. इट मींस दैट देयर विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट द सरफेस. क्लियर हो गई बात? तो वो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ होती है? तो सरफेस पे हमेशा याद रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस. डिड यू अंडरस्टैंड और नॉट?
Electric sir. field lines will always be perpendicular to the surface. Electric field lines will always be perpendicular to the surface. Electric field lines surface पे always perpendicular होगी. ठीक है, मतलब property क्या हो गई? Electric field lines cannot pass through the conductor, and electric field lines will be perpendicular to surface of conductor, conductor. कंडक्टर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर होगी. क्यों होगी? क्यों परपेंडिकुलर ही क्यों होगी? मैं वो रीजन अभी समझाऊंगा, पहले इसको नोट करो. अब हमसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि व्हाई फील्ड लाइंस विल बी परपेंडिकुलर. ठीक है, वो तो हमें समझ में आ गया कि इट कैन नॉट पास थ्रू द कंडक्टर, बट व्हाई विल इट बी परपेंडिकुलर? हमसे ये पूछ ले तो हमें इसका रीजन तो पता होना चाहिए ना. Yes, sir. ठीक है, तो इसको लिख लीजिए जल्दी से, पहले नोट कर लिया हो तो बताओ. Done, sir. Yes, sir. Done, sir. ठीक है. अब देखो बेटा, ऐसा क्यों होना चाहिए, चलो देखते हैं. अगर मान लो ये कंडक्टर है बेटा, अगर मान लो ये कंडक्टर है और मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर नहीं लिया, मैंने ऐसे ले लिया, मान लो, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन ऑब्वियसली. तो बेटा अगर ये ऐसे है तो इसको हम दो पार्ट में रिजॉल्व कर सकते हैं. रिजोल्यूशन याद होगा आपको, वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं ना. Yes. Yes, sir. एक इधर कंपोनेंट आएगा, लेट मी कॉल दिस एज Ex, एंड देयर विल बी वन कंपोनेंट व्हिच विल बी Ey. अब अगर आप इमेजिन करो कि इफ देयर इज अ चार्ज, मान लो ये सरफेस पे एक चार्ज है, यहाँ पर एक चार्ज है, ये एक चार्ज है ना, ये एक चार्ज है, ठीक है, ये एक चार्ज है. तो इस चार्ज पे Ey, there will be a force in y direction on this charge, and that force can be written as Q into Ey. Due to this force, what will happen? Charge will remain at rest or it will start moving. What do you say? बेटा अगर मैं इस बॉडी पे एक फोर्स लगा दूं, इस बॉडी पे एक फोर्स लगा दूं, तो ये बॉडी रेस्ट में रहेगी या मूव करेगी? मूव करेगी सर. मूव करेगी. इसका मतलब है चार्ज विल स्टार्ट मूविंग अलोंग y एक्सिस, मतलब देयर विल बी एन एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस एंड दैट विल नॉट बी इक्वल टू 0. That is, charge along the surface will move in this case. अब बेटा हम चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड. नहीं, पूरा यूनिट क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक. क्या पढ़ रहे हैं? ये पूरे चैप्टर का नाम ये है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक. यूनिट तो यही है ना. Do you know what is electrostatic? Electrostatic means the properties of charges at rest. है ना? We are only discussing those properties of charges which it shows when it is at rest. और यहाँ चार्ज मूव करने लगा, है ना? इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम चार्ज को मूव तो नहीं कराएंगे. Charges should be at rest. The surface charge जो है यहाँ पर वो मूव करने लगा. And the moment the charges starts moving, the moment charges will start moving along the surface, the concept of electrostatic will violate. Did you understand or not? Yes, sir. ठीक है, इसीलिए there cannot be any component of the field along the surface. अब आप ये भी कह सकते हो सर कि because there is a electric field along x axis, तो इसका मतलब चार्ज पे एक x axis का along force लग रहा है. Force, there will also be a force along x axis which will be QEx. तो इसका मतलब acceleration along x axis will not be 0. तो फिर आप इसको क्यों कंसीडर नहीं कर रहे यहाँ पर? एक बात याद रखो, ये अगर सरफेस है और चार्ज यहाँ पर है, आप उसको ऐसे मूव कराना चाहते हो, तो you will have to break that charge from the surface. Are you getting what I am saying? मतलब उसको सरफेस से बाहर करना पड़ेगा ना आपको चार्ज को. Yes, नहीं sir. समझ रहे हो? यहाँ ऐसा समझो कि आपको इसको ब्रेक करना पड़ेगा, मतलब you will have to separate this charge from the surface of the conductor. Separating a charge from the surface of the conductor is not an easy task. It is a very big thing. You need enormous amount of force to detach the charge from the surface.
नहीं आई बात समझ में? You need to have a very, very, very large force to detach the charge from the surface. So it is not easy to move the charge along the perpendicular to the surface. समझ रहे हो? Yes. बट ये जो लेंथ के अलोंग चार्ज चल रहा है, लेंथ के अलोंग, ये तो डिटैच नहीं हो रहा है, तो इसलिए इसको उस फोर्स से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये मूव कर जाएगा। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि अगर यहां पर पैरेलल टू द सरफेस अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट होगा, तो चार्ज विल स्टार्ट मूविंग एंड विच विल वायलेट द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसका मतलब है वी कैन नॉट हैव एनी कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द सरफेस ऑफ कंडक्टर। नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है। ठीक है, which is not possible। इसका मतलब ये हुआ कि therefore no component of electric field can exist along the surface of conductor। ठीक है, कोई कंपोनेंट सरफेस ऑफ द कंडक्टर के अलोंग एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसीलिए कैसे एग्जिस्ट कराना पड़ेगा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, बिकॉज हमें इधर कोई भी कंपोनेंट नहीं चाहिए, और कोई भी कंपोनेंट कब नहीं मिलेगा आपको, जब बिल्कुल आप परपेंडिकुलर ले लो। ठीक है, अगर आपने ये परपेंडिकुलर ले लिया ना, आपको याद होगा कि अगर हम किसी भी वेक्टर को ऐसे रिजॉल्व करते हैं ना, मान लो ये थीटा है, ये ई है, तो ये ई कॉस थीटा होगा और ये ई साइन थीटा होगा। मानते हो? बोलो ना। ठीक है, अगर मान लो कि मैं कोई वेक्टर एकदम एक्स एक्सिस के अलोंग ले लूं, ये वेक्टर है ई और ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पर थीटा एंगल बन रहा था एक्स के साथ, अब यहाँ पर कितना बनेगा? 0 डिग्री। तो ई साइन 0 विल बिकम इक्वल टू 0 और नॉट। इसका मतलब ये वाला ई वाई वाला कंपोनेंट है वो 0 हो जाएगा ना। तो दैट इज व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शुड ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, सो दैट देयर विल बी नो कंपोनेंट ऑफ दिस फील्ड along the surface। I hope मेरी बात सबको क्लियर हो गई। Yes sir। नोट करो, आगे बढ़ते हैं। डन? ओके, मूविंग ऑन। एक छोटा सा बस ऐसे ही 1 मार्क क्वेश्चन, एक पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर एक हमने कंडक्टर रख दिया, इट्स अ कंडक्टर, ये कंडक्टर है एंड कंडक्टर इज नेगेटिवली चार्ज्ड, ये कंडक्टर है, ये नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि हाउ विल यू ड्रॉ द फील्ड लाइंस? इस अरेंजमेंट ऑफ 1 चार्ज एंड 1 कंडक्टर के लिए फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ करोगे? पॉजिटिव से नेगेटिव है ना, इट विल ओरिजिनेट एट पॉजिटिव, विल टर्मिनेट एट नेगेटिव, बट जहां पे आप टर्मिनेट करा रहे हो इट इज अ कंडक्टर, सो फील्ड लाइन शुड टर्मिनेट एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। कैसे टर्मिनेट होना चाहिए? at an angle of 90 degree। तो you will bend the field line slightly to make this angle 90 degree। आप जितने चाहो उतने field lines draw कर सकते हो, as many field lines you want to draw you can draw, but all those field lines should terminate at the conductor at an angle of 90 degree। this is how you will draw the field lines। नोट कर लो जल्दी से, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट डन हो गई। डन सर। ओके गुड, ठीक है। अच्छा बेटा, अगर कहीं पर एक और छोटी सी बात, कहीं पर अगर मान लो इफ यू हैव पैरेलल फील्ड लाइंस इन सम रीजन, एक छोटा सा पॉइंट और, इफ यू हैव फील्ड लाइंस लाइक दिस, अगर आपको ऐसे फील्ड लाइंस हैं, ये फील्ड लाइंस, तो व्हाट विल इट मीन कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कैसा है? इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है या वेरिएबल है? व्हाट काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस रीजन इफ यू हैव दिस काइंड ऑफ फील्ड लाइंस? कांस्टेंट। वेरी गुड। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट हो तो हम पैरेलली फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं, और अगर फील्ड लाइंस ऐसे बना दिया हमने, कुछ ऐसे कर दिया, या स्ट्रेट लाइन ही बनाऊं, मान लो मैं स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ कर सकता हूं, ऐसे स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर दूं, ऐसे ड्रॉ कर दूं, तो इसका मतलब होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर वेरिएबल। व्हाई? बिकॉज
अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी दैट वी नो कि यहाँ पर सेपरेशन कम है और यहाँ पर सेपरेशन ज्यादा है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ एट बोथ द पॉइंट्स आर नॉट सेम, और यहाँ पर हर में सेपरेशन इज सेम, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट। तो वेरी गुड, आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन समझ में आ गया? मैंने इरेज कर दिया है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है, दैट इज डाइपोल मोमेंट, डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट। टॉपिक का नाम लिखो, इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट, ठीक है सर। अब देखिए सर, सबसे पहली बात क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? डाई मतलब दो, पोल मतलब दो पोलैरिटी, पोलैरिटी मींस वन पॉजिटिव एंड अनदर नेगेटिव। तो देखो बेटा, डाइपोल इज बेसिकली एन अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस। क्या मतलब सर? ये डाइपोल क्या है? बस एक अरेंजमेंट है। कैसा अरेंजमेंट है सर? अगर मान लो एक पॉजिटिव चार्ज मैं ले लूं और एक नेगेटिव चार्ज ले लूं एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, मान लो इन दोनों को मैंने सेपरेट कर दिया बाय सम डिस्टेंस, लेट्स से r, एंड r इज वेरी वेरी स्मॉल, तो इस केस में दिस अरेंजमेंट विल बी कंसीडर्ड एज अ डाइपोल, ठीक है सर। क्राइटेरिया क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वैल्यू सेम होनी चाहिए, ठीक है, ये क्राइटेरिया है। क्या मतलब हुआ सर? अगर मान लो मैं आपसे कहता हूं कि ये +4q है, ये -4q है, एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, तब भी हम इसको डाइपोल कहेंगे। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? नॉट ओनली दिस बेटा, अगर मैं आपसे कहूं कि ये एक रिंग है, इट्स अ रिंग, कंसीडर इट एज अ रिंग, और मान लो कि मैं आपसे कहूं कि हाफ ऑफ दिस रिंग हैज अ पॉजिटिव चार्ज, टोटल चार्ज ऑफ q, and another half has a total charge of q, again -q, it is also a dipole। नहीं आ रही बात समझ में? It will also be a dipole। Are you getting what I am saying? Yes, कि sir. for a dipole charges should be equal and opposite, this is the criteria, shape is not the criteria, shape is not the criteria। For example, अगर मैं आपको बोलूं एक बात और समझिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि सर मैंने ऐसा कुछ सर्कुलर पार्ट लिया, one arc of the circle, it is one arc of the circle ऐसा, and it is having a total positive charge of +q, and I place a charge of -q here, this arrangement will also be called as a dipole। समझ रहे हो आप? This arrangement will also be called as a dipole। तो डाइपोल सिर्फ ऐसा नहीं होता, डाइपोल बहुत तरह से हो सकता है। द रिक्वायर्ड क्राइटेरिया इज कि पॉजिटिव चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज शुड बी सेम एंड दे मस्ट बी सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो द नेम गिवन टू एन अरेंजमेंट ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, an arrangement of मैं डेफिनेशन नहीं लिखूंगा यार, ये आपको याद होगा। an arrangement of equal and opposite charges separated by a small distance is called as a dipole। अब एक बात समझो बेटा, अगर मैं कोई डाइपोल लेता हूं तो मैंने आपको डिफरेंट केसेस समझाया डाइपोल का, तो इसका मतलब है बेटा कि अगर चार्जेस की वैल्यू मैं चेंज करूंगा तो डाइपोल की भी तो वैल्यू चेंज हो जाएगी ना। सोच के देखो भाई, ये अगर +q और -q है तो भी ये डाइपोल है, और ये अगर 4q है एंड इट इज -4q तो भी ये डाइपोल है, तो ये दोनों ही डाइपोल हैं। तो हाउ विल यू डिफरेंशिएट दीज टू डाइपोल्स? समझ रहे हो आप मेरी बात? बेटा Yes. ये तो है डाइपोल, बट इसको डिफरेंशिएट कैसे करोगे? ये दोनों तो डाइपोल ही है। तो भाई डिफरेंशिएट करने के लिए कुछ तो इसकी प्रॉपर्टी भी डिफाइन करोगे ना आप। Yes, तो sir. हम करते क्या है बेटा, वी डिफाइन अ क्वांटिटी विच इज कॉल्ड एज डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, व्हाट इज दिस डाइपोल मोमेंट? तो डाइपोल मोमेंट इज अ क्वांटिटी, नॉर्मल अगर मैं कहूं तो डाइपोल मोमेंट इज अ क्वांटिटी विच गिव्स द स्ट्रेंथ ऑफ अ डाइपोल। डाइपोल मोमेंट गिव्स द स्ट्रेंथ ऑफ अ डाइपोल। नॉर्मल अगर मैं कहूं तो डाइपोल मोमेंट गिव्स द स्ट्रेंथ ऑफ अ डाइपोल। ठीक है, मतलब वो क्वांटिटी जो डाइपोल की स्ट्रेंथ बताता है उसको हम डाइपोल मोमेंट कहते हैं। तो मान लीजिए ये दो चार्जेस हैं,
और इसको हम 2a से सेपरेट कर दें। अच्छा, आप ये कह सकते हो सर आपने 2a क्यों लिया, a भी तो ले सकते थे। आई हैव नो इशू सर, अगर मैं ऐसे कह दूं ना, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू और ये डिस्टेंस में a लिखूं, तब भी ये डाइपोल है सर, एज लॉन्ग एज दिस a इज वेरी स्मॉल। अगर मैं कहूं कि साहब ये a भी नहीं लिख रहा मेरा मन, आई एम नॉट राइटिंग दिस एज a, मैं इसको r लिख देता हूं, तब भी ये डाइपोल है, एज लॉन्ग एज दिस डिस्टेंस इज स्मॉल। तो आप मुझसे क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हो कि सर जब ये डाइपोल है तो देन व्हाई आर यू राइटिंग 2a। तो बेटा बेसिकली हमें ना इसका बेनिफिट आगे डेरिवेशन में मिलेगा। थोड़ा सा 2a लिखने से ना, अगर मैं इसको, इस डाइपोल को अगर मैं इक्वल पार्ट में डिवाइड करूं, मतलब इक्वली डिवाइड करूं सेंटर से, तो इसको मैं a लिख सकता हूं और इसको a लिख सकता हूं, अगर मैंने इसको 2a माना है तो। बट अगर मान लो कि मैंने इसको a माना है, दिस होल लेंथ अगर मैंने a माना है, तो सेंटर से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो a/2 तो कुछ फ्रैक्शन जैसा हो जाएगा। नहीं आ रही बात समझ में? इसीलिए हम लोग जनरली 2a अज्यूम करते हैं। बट याद रखो कि 2a ही अज्यूम करना है ये बिल्कुल नेसेसरी नहीं है। यू कैन टेक दिस डिस्टेंस एज 2a और a इज ऑफ योर चॉइस, ठीक है, बट हम लोग 2a मान के सोचेंगे, ठीक है। अच्छा, डाइपोल मोमेंट, तो ये तो समझ में आ गया कि डाइपोल मोमेंट स्ट्रेंथ बताएगा, बट कैसे बताएगा, क्या फॉर्मूला होगा, क्या इक्वेशन होगा। तो हम बेटा डाइपोल मोमेंट को ऐसे डिफाइन करते हैं, ध्यान से देखिएगा। डाइपोल मोमेंट P से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इट इज डिफाइंड एज मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन ऑफ द चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन ऑफ द चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। मतलब डाइपोल मोमेंट निकालना है तो कोई भी एक चार्ज लो और इसको 2a से मल्टीप्लाई कर दो, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट। अब इस पे मैंने वेक्टर साइन लगाया है बेटा ना, इसका मतलब है डाइपोल मोमेंट ऑब्वियसली इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दिस डाइपोल मोमेंट? तो ऑलवेज रिमेंबर द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज ऑलवेज टेकन एज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हम कैसे अज्यूम करेंगे? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। देखो, अगर आपने केमिस्ट्री में भी डाइपोल मोमेंट पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में मॉलिक्यूल्स का डाइपोल मोमेंट, तो केमिस्ट्री में जो डायरेक्शन आप लेते हैं ना, वो पॉजिटिव से नेगेटिव लेते हैं, और हम लोग फिजिक्स में जब ये डायरेक्शन कंसीडर करते हैं तो नेगेटिव से पॉजिटिव करते हैं। इसका मतलब अल्टीमेटली मैं ये डिफाइन कर सकता हूं, आप सुनना, कि डाइपोल मोमेंट को मैं ऐसे डिफाइन कर सकता हूं, इज अ वेक्टर क्वांटिटी whose magnitude is equal to product of magnitude of any one charge and separation between them, and whose direction is from negative to positive charge. This is the definition of dipole moment. And in normal way, you can remember dipole moment is a quantity which gives the strength of a dipole, which gives the strength of a dipole. आपने नोट कर लिया बच्चों? नो सर। नोट कर लो। ओके, तो आज इतना ही रहने दीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। ठीक है, बाय बाय। थैंक यू।